is discuss about erythropoietin in anemia. Erythropoietin, or short form EPO, is produced primarily by peritubular cells in kidney. Major production of erythropoietin is by peritubular cells of kidney. Primarily, it is produced by peritubular cells in kidney. Erythropoietin plays a vital role in regulating erythropoiesis, the process of red cell production. Erythropoietin regulates erythropoiesis, that is red blood cell production. Mechanism of action. Erythropoietin binds to JAK-STAT receptor. JAK-STAT receptor. When erythropoietin binds to JAK-STAT receptor, it triggers a cascade of events. It alters the phosphorylation of intracellular proteins. It activates transcription factor, regulates gene expression related to red blood cell production. Erythropoietin's mechanism of action is dose dependent, but it does not affect the lifespan of existing red blood cells. Erythropoietin effect and mechanism of action is dose dependent, but it does not affect the lifespan of the existing RBCs. एरिथ्रोपोइटिन जैक-स्टाट रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिसके कारण काफ़ी सारे इवेंट्स ट्रिगर होते हैं. जो इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स है उसका फॉस्फोराइलेशन चेंज होगा, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन चेंज होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे और जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करता है. जो जीन्स आरबीसी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनको रेगुलेट करता है. और एरिथ्रोपोइटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डोज डिपेंडेंट है, पर ये जो है वो लाइफ स्पैन ऑफ एग्जिस्टिंग आरबीसीज़ को अफेक्ट नहीं करता. जो आरबीसीज़ ऑलरेडी हैं उनके लाइफ स्पैन को एरिथ्रोपोइटिन अफेक्ट नहीं करता. इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डोज डिपेंडेंट है. कौन से रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो जैक-स्टाट रिसेप्टर से बाइंड करता है. यूजेस. एरिथ्रोपोइटिन हैज़ सेवरल क्लिनिकल एप्लीकेशंस, जैसे कि अनीमिया ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर. Epoetin, a recombinant form of erythropoietin, is used to treat anemia in patients with chronic renal failure who have low levels of erythropoietin. It is administered via intravenous or subcutaneous injection and can raise hematocrit and hemoglobin levels, reducing the need for blood transfusion and improving patients' quality of life. तो सबसे पहला यूज़ है एरिथ्रोपोइटिन का अनीमिया ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर. अगर रीनल फेलियर है तो एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन ही कम होगा. क्यों? क्योंकि उसका प्राइमरी प्रोडक्शन कहाँ से होता था, फ्रॉम द पेरीटिब्यूलर सेल्स इन किडनी. तो क्रोनिक रीनल फेलियर के कारण अनीमिया हो सकता है. उसके ट्रीटमेंट में वी यूज़ epoetin. Epoetin is a recombinant form of erythropoietin. Epoetin. इसको इंट्रावीनसली या सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करते हैं और ये हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट लेवल्स को इंक्रीज़ करेगा, जिसके कारण ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो नीड है वो कम होगा और उसके कारण पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट विल इम्प्रूव. The second is anemia in AIDS patient. Epoetin, that is the recombinant form of EPO, may be used to treat anemia in AIDS patient, particularly those receiving zidovudin treatment. AIDS patient अगर कोई zidovudin treatment receive कर रहा है तो उसमें तो particularly we will use erythropoietin. We use the recombinant form of erythropoietin, that is epoetin. So epoetin may be used to treat anemia in AIDS patient, particularly those receiving zidovudin treatment. Zidovudin treatment.
Pseudovudine is a antiretroviral medication used to treat HIV infection. Pseudovudine is also known as एजिडोथाइमिडीन और ये एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है. इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर दैट वर्क बाय इनहिबिटिंग द रेप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस. और इसका एक कॉमन सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है अनीमिया. तो ज़िडोविडन ट्रीटमेंट से HIV पेशेंट्स को ट्रीट करता है और इसका एक सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है अनीमिया. तो उस केस में वी विल यूज़ एरिथ्रोपोइटिन. देन वी ऑल्सो यूज़ इन कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अनीमिया. तो कीमोथेरेपी के कारण भी अनीमिया हो सकता है, उस केस में भी वी विल यूज़ एरिथ्रोपोइटिन. एडवर्स इफेक्ट. While erythropoietin therapy can be beneficial, it can also lead to certain adverse effects, including increased clot formation, hypertensive episodes, thromboembolic events and seizures. ठीक है, तो EPO के कारण रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिसके कारण ब्लड का विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगा. ब्लड का विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगा तो क्लॉटिंग के रिस्क इंक्रीज़ होंगे. तो इंक्रीज्ड क्लॉट फॉर्मेशन और उसके कारण कुछ थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक, MI. These are also some serious thromboembolic events. There are potential risk associated with EPO therapy. और हाइपरटेंसिव एपिसोड्स भी हो सकते हैं. सीजर्स काफ़ी रेयर है पर दे आर रिपोर्टेड एज एन एडवर्स इफेक्ट. ठीक है, तो EPO के कारण ब्लड फॉर्मेशन RBC का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ेगा. तो थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स का भी पोटेंशियल रिस्क होता है EPO थेरेपी में. एंड देन वी विल हैव हाइपरटेंसिव एपिसोड्स. इसलिए जब EPO देते हैं तो हम लोगों को ब्लड प्रेशर, प्लेटलेट काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट, ये सब को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए. सीजर इज़ अ रेयर side effect but it has also been reported. Flu-like symptoms. Some patients may experience flu-like symptoms lasting for hours after EPO administration. तो EPO administration के कुछ घंटों तक some patients may have flu-like symptoms.